Welcome to Spudrick Health Show once again. So मैं सविता और आज हम एक और एपिसोड लेके आए हैं जो कि specially is dedicated to Theodore Cross. It is his 100th death anniversary and he was the follower and disciple of the great scientist Matthew. Theodore Cross का नाम फार्माकोपिया में दर्ज भी हो चुका है. So आज हम जानेंगे उनके बारे में and why his importance is so much in this Spudrick electropathy science. So today we have Dr. Vinod and Pradeep to talk and discuss, to dedicate this special program to him. So welcome once again. Thank you very much, Savita, for having us here today. Like Savita has mentioned, we would like to dedicate this day, 100th anniversary of late Theodore Cross. He was a wonderful disciple of Count Caesar Mattei and obviously was the one who had continued this system basically forward. So as you all know, we have also established our new health centre, which is also dedicated to Theodore Cross as well. I would like to mention that Dr. Vinod Kumar was the only one who had realised Theodore Cross' real importance. No one had knew who he was or what he had actually done, or even if he was a disciple of Count Caesar Mattei. So Dr. Vinod Kumar was the one who had brought this research out. He had done a lot of research over the 25-30 years, and it's wonderful to know that all of this system is basically being continued due to Theodore Cross. So where Count Caesar Mattei had left off, Theodore Cross was the one who had taken this obviously forward. So I would like to appreciate that as well from Dr. Vinod Kumar. I would like to mention that Satyapal, who had basically made WHO after 100 years after Theodore Cross's death. So it's wonderful to know how these numbers are basically working together, because exactly this happened after 100 years where WHO was established, and it's obviously grown from strength to strength with this wonderful science where we are working nationally as well as internationally and creating this awareness further and further. This centre is also made after 100 years. So it's a great achievement, a very moment of feeling a proudness of that, how our team and our system is basically working. So it's a great privilege to know that obviously after another 100 years, as this centre is basically made, and we again are taking the knowledge further. Thank you so much, Pradeep. That's very good to know. So moving on, Dr. Vinod, I would like to ask you, काफी controversy होती है कि why Theodore Cross is so important. So आप please explain करो कि why इतना importance क्यों आपने समझा for Cross. हेलो सविता जी, थैंक यू प्रदीप जी, सभी को मेरी प्यार भरी नमस्ते। हम लोग आज 100 साल के उपलक्ष्य में 100 साल एक तरह से आप श्रद्धांजलि कह सकते हैं कि हम थियोडोर क्रॉस जी को आज श्रद्धांजलि देने के लिए एपिसोड डेडिकेट कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच सविता जी आपका, जो आपने ये एपिसोड डेडिकेट किया। जैसा कि प्रदीप ने बताया कि क्यों क्रॉस जी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इस सिस्टम का, यानी कि मैटी जी का। और आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि वो मैटी जी के डिसाइपल थे और मैटी जी से सीखे भी थे। और साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि उन्होंने तकरीबन 8 साल, 6 साल से लेके 8 साल जो मैटी जी के लास्ट टाइम थे, यानी कि 1888 से लेके मैटी जी की डेथ तक 1896 तक उन्होंने उनके साथ काम किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर आप मैटी जी की साइंस को देखें तो उनके दौरान क्रॉस जी का एक फॉलोवर होना किसी भी साइंस के लिए, अगर आप आयुर्वेदा की बात करें, होम्योपैथी की बात करें, मॉडर्न साइंस की बात करें, या आप आम घर की बात करें, तो एक जनरेशन, एक फॉलोवर, एक लेगेसी इम्पोर्टेंस महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो वैसे ही क्रॉस जी के बारे में मैंने ये रिसर्च की कि आज कितने ही मिथ या कितनी ही तरह की भ्रांतियां मैटी जी के सिस्टम को लेके चल रही हैं, और हम समय समय पर वो भ्रांतियां दूर करने आए हैं।
और जब मैंने इस इतिहास को खुद इटली में जाके भारत से निकलकर इटली में जाके फिर जर्मनी और फिर यूके यूरोप में करने के बाद विश्व स्तर पर जब मैंने इसके ऊपर एक रिसर्च की, तो अक्सर लोग जो हिस्टोरियन ये गलती कर जाते थे, हमारे एक्सपर्ट ये गलती कर जाते हैं कि हम एक विजिटिंग प्लेस समझकर उस चीज को छोड़ देते हैं, यानी कि हम उसके बारे में समझ नहीं पाते कि उसका उद्देश्य क्या था। क्रॉस को नजरअंदाज करना हमारे पूरे सिस्टम के लिए भारी पड़ा, क्योंकि मैटी जी के बाद फॉलोवर होना, उसको प्रूव करना, फाउंडिंग इज अलग बात है। इन्वेंट करना किसी चीज को, वो एक पर्टिकुलर एक पर्सनल उनकी एक देन हो सकती है, लेकिन जब तक वो फॉलो नहीं होगी, जब तक वो पूरे विश्व में कंटिन्यूटी नहीं होगी, तब तक उसको महत्व नहीं दिया जा सकता। अगर हम देखें कि आप आज हमारे चिकित्सकों के अंदर ज्यादातर, अगर आपको किसी को शायद ये पता होगा कि मैटी जी ने सिस्टम की ही रचना नहीं की, बल्कि खोई हुई एक स्पजरिक आर्ट जो वर्षों से, यहाँ तक कि 2500 साल तो मैटी जी ने अपनी बुक में लिखा है जी। 25 सेंचुरीज के बाद मैंने ये सिस्टम की रचना की। आप क्या सोचते हो कि 25 सेंचुरी कहना एक छोटी सी बात है? अगर आप देखा जाए आज की जो डेट चलती है, आज का जो कैलेंडर चलता है, वो 2500 साल से चलता है, 2000 साल से चलता है, ठीक है। तो उनका ये कहना है कि सृष्टि जब बनी तो 2000 साल से सृष्टि हुई थी। अगर मैं थोड़ा सा और आगे लेके जाऊं, जो हम लोग वेदों को मानते हैं, या हम लोग जो प्राचीन हिंदुत्व है वो हजारों साल से, महाभारत से 5000 साल चल रहा है, तो अर्क विद्या, रसायन पद्धति और अल्केमी, जिसको स्पजरिक 500 साल पहले पैरासेल ने जीवित किया, उसको रीइन्वेंट किया मैटी जी ने। कोई और इतिहास में नाम नहीं आएगा आपका। पैरासेल्सस के बाद स्पजरिक का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो मैटी जी का नाम पहला आएगा। और मैटी जी का क्या कारण रहे कि उन्होंने इस विद्या को बनाने के बाद कुछ कारण की वजह से इसको, जो कुछ भ्रांतियां हैं कि उन्होंने शायद इसको जिम्पल को दिया, या साउथर नाम के एक साइंटिस्ट हुए हैं उनको दिया, या फादर मुलर को दिया। ये कितनी ही तरह के जो एक अध्याय जोड़ा जाता है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखा जाए तो जब उसको परखने की बारी आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्रॉस से बढ़िया इस मैटी साइंस को कोई प्रूव नहीं कर पाया। अगर आप जिम्पल को देखें तो उनकी लेगेसी अभी कोई चल नहीं रही। उनका जो स्पजरिक है वो भी मैटी जी से सीखे, मैटी जी के साथ काम किया, उन्होंने जो दवाइयां बनाई वो भी कंटिन्यू नहीं है। अगर आप फादर मुलर की बात करें तो वो भी एक टाइप होके एक स्टेट में रह गया, उसका भी विश्व स्तर पर कोई इतना योगदान नहीं हुआ। और तो और वो दवाइयों के तौर पर यूज किया जा रहा है, प्रिंसिपल या एक फिलॉसफी, एक सिस्टम के तौर पर यूज नहीं किया जा रहा। अब रही बात साउथर की, वो सिस्टम जो इंग्लैंड के अंदर और यूरोप के अंदर कहा जाता है कि उन्होंने एक सिस्टम बनाया, वो भी कहीं ना कहीं आगे जाके कामयाब नहीं हुआ। तो अगर आप देखेंगे, क्रॉस ही एकमात्र ऐसे शख्स, एक साइंटिस्ट ऐसे रहे जिन्होंने मैटी जी को पूर्ण रूप से समझा। अगर ये काम अधूरा मैटी जी ने छोड़ा तो उसको पूरा करने में क्रॉस जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और क्रॉस जी पहले से ही उनके परिवार के अंदर, उनके जो दादाजी थे जी, वो दादाजी होम्योपैथ थे। और आप देखिए कि होम्योपैथ एनवायरनमेंट में वो पैदा हुए हैं, और उनके साथ साथ उन्होंने होम्योपैथी को सीखा। और होम्योपैथी सीखने के बाद जब वो मैटी जी के टच में, जब सिस्टम में आए, तो उन्होंने इसके ऊपर कितना अध्ययन किया, और बाद में मैटी जी के ध्यान के बाद ये सिस्टम पूर्ण रूप से क्रॉस जी की झोली में चला गया, यानी क्रॉस जी के दायरे में आ गया। क्योंकि जो मैटी जी के दामाद माने जाते हैं एमबी मैठई, वो भी इसको कंटिन्यू ज्यादा सालों तक नहीं कर पाए। Yeah, but I'd like to mention that I don't think no one apart from Third Cross would have been better to take the system basically forward. So he has extraordinarily been a true disciple to Count Susan Matai, and in regards of the medicines and the knowledge, he had progressed further.
So I don't think nobody could replace a true disciple like Theogros had done on behalf of obviously Count Caesar Mattei. And I think the followers had remembered Count Caesar Mattei, which is obviously wonderful, but I think nobody had realized, or you could say forgotten, Third Cross. And that's why I had clearly mentioned before that even I myself would not known have Third Cross if Dr. Vinod Kumar not had obviously, brought this research forward about who he was, what he had did, how many years he had contributed, and after the death of Count Caesar Mattei, how he had established and very knowledgeably took this obviously forward. So the followers, I believe, should not forget the teachers. I mean, these are all our sincere teachers, learners, scientists, Count Caesar Mattei, Third Cross. So I, would appreciate for everybody to continuously give their support of this obviously celebration we are taking today. बिल्कुल अगर सविता जी आपने कहा जर्मन फार्माकोपिया जी के अंदर नाम दर्ज है, अगर आप होम्योपैथिक की फार्माकोपिया की बात करें तो कितने ही देशों में होम्योपैथिक का रिगार्ड दिया जाता है, कितने ही होम्योपैथिक के जो फॉलोअर्स हैं और कितने ही हनीमैन के फॉलोअर हैं। अगर हम अपने देश की हर्बलिज्म आयुर्वेदा की बात करें तो कितने ही फॉलोअर हैं, रिगार्ड दिया जाता है एक मेथड को। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो स्पजरिक की आर्ट को मैटी जी ने रीइन्वेंट किया। हम उनके सिस्टम की बात नहीं कर रहे अभी। स्पजरिक आर्ट एक पूरे वर्ल्ड में उसका जो रूट है वो हजारों वर्षों से चला आ रहा है और स्पजरिक एक आर्ट मानी जाती है, ये साइंस ने प्रूव कर दिया। यहाँ तक कि मैं कहना चाहूंगा कि आयुर्वेदा है या अल्काइमी प्रोसेस है या एलोपैथी है, उसका जो फार्मास्यूटिकल है कहीं ना कहीं स्पजरिक से मिलती है। तो स्पजरिक को अगर काउंट सीजर मैटी ने 500 साल बाद रीइन्वेंट किया तो उसको सीखने वाले सिर्फ दो ही लोग थे, जिम्पल और क्रॉस। ये दो ही व्यक्ति आज जर्मन फार्माकोपिया में अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो नाम आएगा। उसके बाद आज कितनी ही कंपनियां, कितने ही फाउंडर, कितने ही इंडिविजुअल लोग पर एक्सपर्ट निकले वो बात है। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत मैटी जी से हुई, उससे पहले 500 साल पहले पैरासेल्सिस से हुई और उसके बाद वो बंद हो गई। यहां तक कि मैं आपको बताऊं कि हनीमैन जी जो कि बहुत बड़े एक इन्वेंटर थे होम्योपैथी के, वो भी कहीं ना कहीं होम्योपैथी को इन्वेंट करते करते स्पजरी को नजरअंदाज कर गए। हालांकि उन्होंने सारे प्रिंसिपल वहां से लिए, स्पजरिक से लिए या पैरासेल्सिस से लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो कहीं ना कहीं वो चूक गए। तो क्या हुआ, वो जो दवाइयां हैं वो अच्छी तरीके से नहीं बन पाई। तो कहने का मतलब है कि अगर जर्मन फार्माकोपिया में जो शुरुआत हुई है, मैटी अनफॉर्चुनेटली कहें कि मैटी जी का नाम नहीं आ पाया या कोई भी कारण रहे, लेकिन उनके दोनों डिसाइपल, अगर जिम्पल की बात करें, क्रॉस की बात करें, तो दोनों ही मैटी जी से सीखे। मैटी जी ने इन्वेंटिव की और दोनों का नाम लिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी एक हिस्टोरियन की गलती है कि उन्होंने इसको सेपरेट समझ लिया। सेपरेट कभी नहीं समझना। दूसरी बात यह है कि क्रॉस जी की अगर सारी दवाइयों का आज हम 60 मूल्यांकन करें तो वो बिल्कुल रिसेंबलिंग लगता है, बिल्कुल एक तरह से मैटी जी की पुरानी किताबों को अध्ययन किया जाए तो बिल्कुल उसका एक तरह से पूरक लगती है, उसके बगैर अधूरा है। अगर पूछा जाए कि मैटी जी की सिस्टम की वो 38 दवाइयां में कितनी भ्रांतियां चल रही हैं कि वो फार्मूला असली है कि नहीं है, लेकिन आज जो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है वो क्रॉस के हिसाब से चल रहा है। तो क्रॉस ने उसको फॉलो आगे चल के, आप दवाइयां तो क्रॉस की यूज कर रहे हैं, वो मैटी जी ने दी नहीं दी उसका एक अलग बात है, लेकिन आज जो 60 दवाइयां हम कहते हैं गर्व से, वो तो काउंट सीजर मैटी के बाद क्रॉस ने दी और क्रॉस को तो इम्पोर्टेंस दी नहीं। आप किसी भी बुक के अंदर क्रॉस को सिर्फ एक लाइन आएगी आपके पास कि क्रॉस हैज स्टार्टेड इट, बट उसका दूर क्या जाना। मुझे लगता है कि हम लोग ही बताएंगे कि 100 साल आज 1924 के अंदर उनका जो ध्यान हुआ था, 2024 के अंदर 100 साल हो गए अक्टूबर के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि 100 साल के अंदर ये सौभाग्य हमें मिला कि 100 साल पूरे होने पर डॉक्टर सत्य पॉल ने वर्ल्ड में एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बनाया जो आज
16 घंटियों में काम कर रहा है और इस्टेब्लिश कर रहा है। आज 100 साल बाद हमने एक यूरोप के अंदर जी काउंट सीजर मैटी के बाद क्रॉस जी ने जो स्थापना की थी जर्मनी के अंदर, आज वो 100 साल बाद हम उसका एक तरह से एक सेंटर एस्टेब्लिश किया है हमने। जी तो कितना ब्लेसिंग होगी, कितना हम लोगों के ऊपर मुझे लगता है कि गुरु कृपा होगी। तो जी जरूर मुझे ऐसा लगता है कि बिना काउंट सीजर मैटी की ये साइंस को अगर हम क्रॉस की नजरों से नहीं देखेंगे तो ये अधूरी रहेगी जी और हम कहीं ना कहीं भटकते रहेंगे। Of course, of course. That is absolutely amazing. So जैसे डॉक्टर विनोद ने बताया कि क्रॉस का क्या इम्पोर्टेंस है. So next thing I would like to ask, what is Theodor Cross's importance, contribution with Mati and the Spudric electropathic science? What is his actual importance in that? बिल्कुल सविता जी, जैसा कि मैंने अभी बताया था, लेकिन इसका जो असली जी महत्व है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि काउंट सीजर मैटी की डेथ के बाद इस साइंस को प्रूव करने के लिए किसी फॉलोवर की जरूरत है। और अगर आप देखेंगे कि कोई भी इन्वेंशन फॉलोवर उसको प्रूव करता है। आज हम हवाई जहाज की बात करें, आज हम फोन्स की बात करें, आज हम धर्म की बात करें, तो फॉलोवर उसको प्रूव करता है। अगर आप इन्वेंटर की बात करें, फाउंडर की बात करें, तो वो थोड़ा सा बता के गया है। आप पहले जमाने का हवाई जहाज देखेंगे तो बिल्कुल आज की तुलना में लोग ये सोचेंगे कि ये चलता कैसे होगा। जी लेकिन आज के अगर आप हवाई जहाज देखेंगे, एरोप्लेन्स देखेंगे, तो आप हैरान रह जाएंगे। अगर पुराने जमाने का मोबाइल फोन अगर आप लेंगे तो मुझे लगता है कि वो पॉकेट में आएगा नहीं। तो कहने का मतलब ये था कि उसको सूक्ष्म बनाया, उसको डेवलप किया। अब मैटी जी को तो आप मान रहे हैं, लेकिन प्रूव कैसे करेंगे आप? तो हिस्टोरियन ने क्या किया कि क्रॉस जी को तो समझा नहीं, और क्रॉस जी के साथ भी मुझे लगता है कि इतिहास ने न्याय नहीं किया। जी उसकी जो खोज थी वो एक कंपनी के माध्यम से दब के रह गई। Of course. वो 100 साल से जो आज हम ये जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं, अगर आप ध्यान से देखें, वो कंपनी आज हम कहते हैं कि जर्मनी के अंदर 100 साल से वो दवाइयाँ बनती हैं। हम कहते हैं सब, जी सारे चिकित्सक मुझसे सहमत होंगे, 100 साल से वो दवाइयाँ। लेकिन किसी ने क्रॉस के नाम पर उनके जन्मदिन को बनाया? किसी ने उनको श्रद्धांजलि दी, उनकी डेथ एनिवर्सरी बनाई? लेकिन क्रॉस जी को हम भूल गए। लेकिन उसका सीधा-सीधा इम्पोर्टेंस ये है कि मैटी जी के बाद इस साइंस को यहाँ तक कि प्रूव करना, इस साइंस को प्रूव करने में क्रॉस जी का बहुत महत्व है। कैसे वो उन्होंने ये जो दवाइयाँ हैं बनाई, आज भी स्पजरी की ये जो दवाइयाँ हैं 115 प्लांट से कैसे वो 7 ग्रुप में जाती है, इसके बगैर आप कैसे एक चिकित्सक बन सकता है? तो हम 100 साल से वो दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं, और अगर हम वो दवाइयाँ ही हमारे पास ना हो, वो फ़ॉर्मूला ही हमारे पास ना हो, तो हम कैसे करेंगे? अब दूसरी बात, वो कंपनी ने इसको एक प्रोडक्ट समझ के लॉन्च किया, जी और पूरे विश्व के अंदर वो फिलॉसफी कहीं दब गई। वो जो प्रिंसिपल्स काउंट सीजर मैटी ने बनाए थे, जो प्रिंसिपल्स के ऊपर यहाँ तक कि जो नाम रखा था, उसको प्रूव करने में क्रॉस जी का बहुत बड़ा है। कैसे वो दवाइयाँ इफेक्टिव हैं, कैसे वो एक प्रिंसिपल के अंदर आते हैं, तो वो हमने कितनी ही एपिसोड में बताया, और यही उद्देश्य है, प्रदीप जी ने बताया कि जो सेंटर बनाया है, वो ही उद्देश्य है कि इस सिस्टम के अंदर बहुत कुछ मिक्स हो गया। जी हिस्टोरियन ने भी न्याय नहीं किया, इसको पार्ट ऑफ होम्योपैथिक बना दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने स्पजरिक थेरेपी का नामकरण स्पजरिक के ऊपर क्यों रखा। ये हमने कई बार बताया, लेकिन आज बताना इसलिए ज़रूरी है कि क्या आप या मेरे चिकित्सक इस बात का जवाब देंगे कि क्या जो मेडिकल सिस्टम है इलेक्ट्रो होम्योपैथी, क्या वो हर्बल है? क्या वो आयुर्वेदा से मैच खाता है? जी क्या वो होम्योपैथिक है? क्या वो एक ओनली प्रोडक्ट है? तो सबको उत्तर आएगा कि नहीं, ये एक अलग सिस्टम है। कैसे प्रूव करोगे? क्या प्रिंसिपल्स हैं? जी और यहाँ तक कि अगर मैं थोड़ा-सा इसके विषय में जाऊँ तो रस और रक्त जो बनाया उसको प्रूव कैसे करोगे आप? जी जब तक आपके पास वो दवाइयाँ नहीं।
जब तक वो आपकी दवाइयाँ आपकी थ्योरी को, आपके प्रिंसिपल्स को प्रूव नहीं करेंगी, तब तक कहीं न कहीं आप उस सिस्टम को डेडिकेट नहीं कर सकते। तो ये दवाइयाँ स्पज्रिक कैटेगरी में आती जी। हैं। अब स्पज्रिक हर्बल से अलग है, स्पज्रिक आर्ट होम्योपैथिक से अलग है। तो इसकी कैटेगरी क्या हुई? इस सिस्टम की कैटेगरी स्पज्रिक हुई। तो हम लोगों को सबसे पहले इसको स्पज्रिक की नज़र से देखना पड़ेगा इस सिस्टम को। उसके बाद हम लोगों को स्पज्रिक की इन्वेंशन किसने की? मैटी जी ने। और उसका नाम दर्ज किसने करवाया? क्रॉस जी ने। जर्मन फार्मा की वैलिडेशन किसने करवाई? जो इंडिविजुअल आज कितने ही मोबाइल कंपनियां आ गई हैं, कितने ही अम, अ, अ, मोबाइल कंपनियां मोबाइल बना रही हैं, लेकिन जब भी बात चलेगी कि पहला इन्वेंशन किसने किया, तब वो एक कंपनी से चलेगा, जी। वो एक फाउंडर से चलेगा। उसके बाद कितने ही लोग उसके ऊपर करते हैं, लेकिन थ्योरी स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा, वो रेफरेंसेस दिए जाएंगे। तो रेफरेंसेस किसका आता है? क्रॉस जी का आता है। और क्रॉस जी का नाम किस है? स्पेसिफिक आफ्टर क्रॉस। और हमने रिसर्च की कि क्या एक स्पजरिक आम मेडिसिन जो है, स्पजरिक का अर्क निकाल के क्या हम उसको मैटी की सिस्टम की मेडिसिन से तुलना कर सकते हैं? तो रिजल्ट आया जीरो। उसका रिजल्ट ही जीरो आया। क्यों? क्योंकि उसकी कोई फिलोसफी नहीं है, उसका कोई डायल्यूशन नहीं है। आपने एक अर्क निकाला, आपने एक अर्क निकाला और अर्क निकाल के उसका आपने कौन सा डायल्यूशन यूज किया? तो मैं अक्सर अपनी पुस्तक में भी लिखा है और अक्सर मैं कहता हूँ और बहुत सिंपल भाषा में कहता हूँ, इससे आपकी जो इम्पोर्टेंस का जो सवाल पूछा उससे मिल जाएगा। जी। तो आपको मैं बताता हूँ कि वो सिंपल सा सवाल का जवाब एक और सही तरीके ढंग से समझने के लिए किया जा सकता है कि आपने एक दवाई है, आप उसको मान के चलिए कि हम लोग नक्स भूमिका को लेके चलते हैं, कुचला जिसे कहते हैं। अब वो आयुर्वेदा भी यूज कर रहा है 5000 सालों से। अब उसका अर्क निकाला और उसका रेशियो जो रखा वो 1:1 रखा, या वो अर्क को डायरेक्ट क्रूड फॉर्म से उसको एसेंस में निकाला, तो वो हर्बलिज्म या आयुर्वेदा हो। उसको क्या कहते हैं हम? एक प्लांट का अर्क निकाला, उसको क्या कहते हैं हम? हर्बलिज्म। उसको क्या कहते हैं? अर्क निकाला। और वो साधारण तरीके से निकला, वो साधारण तरीके से निकला। अब वो साधारण तरीके से निकलने को हमने कहा हर्बलिज्म, ये हर्बल एक्सट्रैक्ट है। अब वो आयुर्वेदा है कि हर्बल है, वो अलग। There's a process is इज अ different. प्रोसेस। और वो आयुर्वेदा फिलोसफी पे जब जाएगा, आयुर्वेदा की फिलोसफी से जब चलेगा, तो वो आयुर्वेदा की दवाई मानी जाएगी, नहीं तो वो अर्क है। अब आ जाइए कि नक्स भूमिका को होम्योपैथिक में ले लीजिए। अब होम्योपैथी के अंदर मदर टिंचर निकाला, उसका नाम हमने रखा 1x, या हमने उसको 3x कह दिया। अब उसकी पोटेंसीज बनी, डायल्यूशंस नहीं, पोटेंसीज बनी। अब वो पोटेंसीज 1:100 रेशियो से चलती है। उसको 30C पे लेके गए, 200C पे लेके गए, 1m पे लेके गए, तो वो होम्योपैथिक हो गई। जो डायल्यूटेड करता चला गया, उसको हम लोग होम्योपैथिक कैटेगरी। अब आ जाइए स्पंजरिक का। स्पंजरिक का प्रोसेस जो है वो पुराना है, उसके अंदर बहुत 40 दिन का समय लगता है, और आज मॉडर्न युग के अंदर उसको 10 दिन कह लीजिए। वो साधारण एसेंस नहीं है, वो स्पजरिक एसेंस जो है, वो तब तक उसको आप हर्बलिज्म कह लीजिए, उसको आप एक एक्सट्रैक्ट कह लीजिए, लेकिन विधि अलग है, बहुत साइंटिफिक है, बहुत अल्काइमी प्रोसेस है। लेकिन उसके बाद जब आपने उसको दिया, D4 में दिया, डायल्यूशन 4 में दिया, तब जाके आप उसको मैटी सिस्टम के अंदर कैटेगरी के अंदर ला सकते। नहीं तो आप वो हर्बलिज्म को, मैं ये कहता हूं कि एक पौधे का नक्स भूमि का एक्सट्रैक्ट यूज करना, उसका थेरेप्यूटिक वैल्यू अलग होगा, उसका इंडिकेशन अलग होगा, वो हर्बलिज्म में है। उसका पोटेंसी यूज करना, उसका 30C यूज करना, उसका 200C यूज करना सिंगल प्लांट के अंदर, वो होम्योपैथी के अंदर। जी। लेकिन अगर जब स्पजरिक की बात आएगी, जब मैटी की बात आएगी, जिसको क्रॉस ने पूरा प्रूफ किया, साइंटिफिक किया, वो नक्स भूमिका का एक्सट्रैक्ट स्पजरिक से बना, और वो स्पजरिक अकेला नहीं, जी। वो पौधे के साथ बाकी 8 दवाइयों के साथ मिलके, 9 पौधों के साथ मिलके वो दवाई S1 बना।
वो जब कॉम्बिनेशन सिनर्जी, अकेला नहीं है, वो सिंगल प्लांट नहीं है। अब यहाँ तक आपने कॉम्बिनेशन कितने चल रहे हैं, आयुर्वेदा के अंदर कॉम्बिनेशन चल रहे हैं, होम्योपैथी के अंदर, कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी के अंदर कॉम्बिनेशन चल रहे हैं, लेकिन जब आप उसको D4 के अंदर कॉम्बिनेशन देंगे तो आप उसको एक एंटी सिस्टम की दवाई मानेंगे। और जब वो कब देनी है, क्या करना है, हाइपर पे देनी है, हाइपो पे देनी है, ये जब तक नहीं साथ जोड़ेगा तो वो सिस्टम नहीं माना जाता। तो नक्स भूमिका को अगर आप आयुर्वेदा के हिसाब से देखें तो थेरेप्यूटिक वैल्यू अलग हो गई, उसका यूज कहीं अलग हो रहा है, लेकिन अगर होम्योपैथी के हिसाब से अगर देखा जाए तो नक्स भूमिका का यूज कहीं और हो रहा है, लेकिन अगर आप सर्जरी के हिसाब से, मैटी के हिसाब से देखा जाए तो कहीं और हो रहा है। जी, इसका मतलब कि वो सेम पौधा अलग अलग कैटेगरी के अंदर, अलग अलग सिस्टम के अंदर अलग तरीके से काम कर रहा है, तो वो उस सिस्टम की महत्वता होगी, उस सिस्टम का श्रेय जाएगा, वो पौधे का नहीं जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग इस सिस्टम को बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। इस सिस्टम को कभी आयुर्वेदा, कभी हर्बलिज्म, कभी मॉडर्न मेडिसिन के रिजल्ट से I ये think रिजल्ट देता yeah, है। I think your discussion is very informative, and obviously for all the listeners. But especially, it is a separate science. There can be similarities, but the process of our medicines, how they are produced, how they are given, like we know, Dr. Kumar has mentioned that with our medicines, we can give the same medicine undiluted or diluted. So it's really wonderful how these medicines work. डायल्यूटेड, प्रदीप जी, डायल्यूटेड और अनडायल्यूटेड ही लिंक है नेगेटिव और पॉजिटिव से, Yes. जी, नहीं तो अधूरा है। आप मुझे बताइए कि आयुर्वेदा के अंदर अर्क को डायल्यूटेड और अनडायल्यूटेड किया जाता है। आप मुझे बताइए होम्योपैथी के अंदर डायल्यूटेड और अनडायल्यूटेड किया जाता है जी, बीमारी के हिसाब से, सर्जरी के अंदर किया जाता है। और उसकी शुरुआत कहाँ किसने की, मैटी जी ने। उसको फॉलो किसने प्रूव किया, क्रॉस जी ने। तो आप घूम घाम के जो बात आती है वो कह देना, कथनी और करने में अंतर है। आप जब तक कह देंगे उसको प्रूव नहीं करेंगे, और इसलिए कहीं ना कहीं हम लोगों के ऊपर ये ब्लेसिंग है कि 100 साल में हमें सत्यपाल जी ने इस प्लेटफॉर्म की रचना की, और आज 100 साल के ऊपर इस सिस्टम का 100 साल के बाद एक कंपनी के बावजूद हमारा एक अस्तित्व बना, और एक हम लोगों का एक ध्येय बना कि हम इस सिस्टम को पूरे विश्व के अंदर फैला सकते हैं। और आज 84 कंट्री में जाना है हमें। जी, Of course, yes, we will be. इस मैटी जी के धरोहर को हमने वो दोबारा से पहचान ले जाके पूरे विश्व में ले जाना है, तो इससे बड़ा कार्य और क्या हो सकता है। इसलिए मैं कभी कभी चिकित्सकों से ये आग्रह करता हूँ कि आप आइए, एक बार देखिए, असली काम को जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक बहुत मुश्किल होगी। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि किसी चीज को समझकर करने में बहुत आनंद आता है, जी, और सुनी सुनाई बातों में तो आपको वो आनंद नहीं आएगा। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम की हमने रूपरेखा, पूरी बैकग्राउंड इसका, यहाँ तक कि हिस्टोरियन को हमने समझाया। ये सिस्टम को आप अलग मैटी सिस्टम हम प्रूव करके दिखाएंगे, जी, और किया। आज कई मुल्कों के अंदर इस सिस्टम को दोबारा से रीएस्टेब्लिशमेंट Yes, हुई of है। course. नहीं तो ये 10 साल पहले ये सिस्टम कहीं नहीं चल रहा था, और अगर कहीं चल रहा था वो जर्मनी के अंदर एक कंपनी उसको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स के दायरे में थी। तो क्रॉस जी का बहुत बड़ा महत्व है सविता जी, और ये चीज हमें हमको ये मुझे ये ज्ञान मिला, और ज्ञान बांटने से और बढ़ता है और Of बढ़ता है। course, of और course. हमें जब ये बात पता लगी, और मुझे जब ये पता लगी, तो मैंने क्रॉस को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट किया कि Third, विदाउट फॉलोवर। Third Cross is also mentioned is in over 100-year-old books, which we have a whole big collection of, our library, our museum. He's clearly mentioned of his बिल्कुल knowledge and where he gained it from, which was obviously Count Caesar Matai, and how he obviously एक्सपेंडेड इट, exactly expanded basically the एक्सपेंडेड पूरी medicines. बुक्स में आता है। Yes, और एक बार मुझे बताया कि क्रॉस बार बार काउंट सीजर मैटी जी का नाम क्यों ले रहे थे, yes, he was a true उसकी disciple. पूरी बुक के अंदर क्यों उन्होंने। चलो एक मिनट के लिए मैं एक जनरल डिस्कस करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैटी जी का जो सिस्टम, एक मिनट के लिए हम लोग इसी चीज में उलझ के रह गए, तो न्यू जनरेशन कह देंगे कि वो सिस्टम चलता था या नहीं चलता था, या कर तो आप क्रॉस की दवाइयों को यूज रहे हैं और फिर आप डेडिकेट कर रहे हैं मैटी को, और फिर कह रहे हैं कि मैटी
का जो फार्मूला था वो मार्केट में नहीं है, या वो नहीं है, हम लेके आएंगे। अरे कब, जब तक लेके आओगे तब तक तो आप चले जाओगे, आने वाली जनरेशन कैसे आएगी? तो ये बहुत समझने की बात है। और ये ज्ञान कोई छोटा सा नहीं है, जिसको समझ आएगा वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो वो वहीं का वहीं रह जाएगा। तो क्या हुआ कि अब अगर मैं ये कहता हूँ कि क्रॉस को फाउंडर मान लिया जाए, ये सिस्टम क्रॉस ने बनाया, लेकिन क्रॉस कहाँ से सीखा? काउंसिलर मैटी से, तो मैटी जी का नाम फिर आएगा। सर्जरी किसने रीइन्वेंटेड की? काउंसिलर मैटी ने की। तो प्रूव हमें क्या करना पड़ेगा कि क्रॉस का ही सिस्टम, असली जो ज्ञान है वो मैटी से आ रहा है। तो आप फाउंडेशन मान लो, आप फाउंडर मान लो क्रॉस को, लेकिन ये सिस्टम जो है कहीं ना कहीं शुरुआत मैटी से हुई। और मैं ये मानता हूँ, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है कि क्रॉस से बढ़िया काउंसिलर मैटी की साइंस को प्रूव नहीं कर सका हो, चाहे वो मैंने पहले नाम लिए साउटर हो या जिम्पल हो या फादर मूलर हो, वो कहीं ना कहीं एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में रह गई, लेकिन फिलोसफी, लॉ प्रिंसिपल, उसके जो टेम्परामेंट्स, आप कितनी बात करें, वो सब हम धीरे धीरे, Of course, a यही root cause. हमारा ध्येय है हमारे सेंटर का। और ये इससे बड़ी बात क्या होगी कि हम भारत से चल के आके आज यूके, यूरोप से इस साइंस जहाँ से चली थी वहां पर हम इस साइंस को दोबारा से एस्टेब्लिश कर रहे हैं। We are very, very proud in carrying this legacy forward, and we hope we get more and more followers, wise followers, who can obviously support us in continuing to take this further as well. सर जैसे कि डॉक्टर विनोद एंड प्रदीप ने हमको एक्सप्लेन किया, आई फील लाइक कि इस डिस्कशन से, इस एपिसोड से जो भी व्यूअर्स हैं जिनके अंदर डाउट होगा क्रॉस को लेके या साइंस को लेके, अब बिल्कुल। काफी क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल। सो आई थिंक दिस एपिसोड काफी महत्वपूर्ण था, स्पेशली फॉर द व्यूअर्स। और वो भी 100 साल होने पर। Yes. जी। आज हम मिलकर आप सब चिकित्सकों के साथ ये पूर्ण रूप से हम श्रद्धांजलि देते हैं 100 डेथ एनिवर्सरी के ऊपर क्रॉस जी की, और ये एपिसोड उनको डेडिकेट करते हैं, हमारा सेंटर उनको डेडिकेट करते हैं। विदाउट फॉलोवर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम फॉलोवरों को देना बंद कर दें तो शायद हम एक अन्याय करेंगे, हम उनके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि क्रॉस के बगैर ये पूरा सिस्टम Incomplete, of course. Yes. और मैटी जी को अगर कोई समझा, कोई अच्छे तरीके से किसी ने जाना, तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो क्रॉस का नाम अग्रणी सबसे पहले हो। आज उन्होंने एक बार, और मैं आपको एक चीज सुविधा जी यहाँ भी बता दूं, हमारे पास वो सारे रेफरेंसेस हैं, वो सारी स्टडी है कि आप कैसे इस सिस्टम को प्रूव कर सकते हैं। जी। हम लोगों ने प्रूव करके पूरे विश्व में चल रहे हैं, 14 कंट्रियों से अब 16 कंट्रियों में हम पहुंच चुके हैं, और हमें 84 में जाना है। और आप देखिए कि पूरे विश्व के अंदर ये मैटी जी की स्पेजरिक सिस्टम को, इन 60 दवाइयों को पूरे विश्व में पहुंचाना है। तो हमें अपने पूर्वजों का और हमें अपने पूर्व चिकित्सकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना होगा, समय समय पर उनके साथ होगा। यही आशा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, Savita, for having us today on discussing this wonderful occasion of Third Cross. If anybody would like further information, then our contact details will be below. So please do get in touch with us, and you're most welcome to ask any questions. Thank you. Thank you very much, और मिलते हैं अगले एपिसोड में।